Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure you all are going through the videos that we are uploading for you, and you all are practicing also the exercises that are discussed, the chapters you are going through that are explained here, and that is very important because these are for your evaluation 3. Children, you know that we are doing chapter 12 of your EVS textbook since past few videos, and I have explained you the chapters. Children, we have completed some exercises also that I have framed from the content of the chapter. Not the exercises that are given at the back of the chapter, that we have already done. What I have done for you is that I have framed a few exercises, and those exercises I have discussed with you in the previous video and completed that also. In today's video, I would like to do an exercise that is given in the book, the exercise of your book, and that is a paragraph related to road safety. Children, I found this important for you, so I will do this paragraph in today's video and a few questions we will do. But before that, let's revise what we have gone through in this chapter. Children, the chapter is road safety, and the word safety itself shows that this topic is very important. Safety means safety of our life. We all are precious to our family is precious to us, so it's our duty, it's our responsibility that we should take care of ourselves when we are outside our home, because topic is related to road safety, so it is our safety outside our home. When we are inside our home, there are people who will take care of you, but when you are out of your house, you should take care of yourself. You should be careful enough that no fatal accidents, no injury happens to you. So there are certain safety measures, there are certain traffic rules that we should all follow. There are certain do's and don'ts that we should keep in mind. And all those do's and don'ts I discussed with you in the previous chapter, previous videos. In fact, जो पिछले 2-4 वीडियोस हमने बनाए हैं इस टॉपिक पर, उस पे जो भी डूज एंड डोंट्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वो पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे थे बोर्ड पर. इफ यू हैव नॉट सीन, प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस सो दैट द थिंग्स विल बी रिवाइज्ड फॉर यू. जो डूज एंड डोंट्स हैं उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए. चलिए, तो हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक, जिसमें कि आपको क्या करना है. एक पैराग्राफ है दैट यू हैव टू कंप्लीट, एंड दैट पैराग्राफ हैज सम ब्लैंक्स इन बिटवीन. उस पैराग्राफ के बीच बीच में ब्लैंक्स हैं, वो आपको फिल करना है. कैसे फिल करना है? विद द वर्ड्स गिवन. डेफिनेटली वर्ड्स आर गिवन, यू हैव टू पिक द वर्ड्स एंड पुट एट द राइट प्लेस. आपको सही जगह पर वो लिखने हैं उन वर्ड्स को, एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट पैराग्राफ. आपको वो पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करना है. सो आई विल राइट द पैराग्राफ फॉर यू फर्स्ट, एंड देन वी विल डू दैट. लेट मी राइट द क्वेश्चन. फिल इन द blanks with correct words to complete the sentences. The sentences. Choose the word from the clue box. Choose the words from the clue box. Now I will make a clue box for you. और वो clue box मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ आपके लिए. This is the clue box. Here I will be writing the
ये हमारा क्लू वर्ड्स है. Words are holding, queue, pavement, lean, red, zebra crossing, bus, footboard, driver, and completely. This is the box को और broad कर देते हैं so that we can adjust the words. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. We have 10 words. Total 10 words hai. And now I will write the paragraph here. My name is Mani. And I am 8 years old. Every day I go to school with my father. On foot. I always walk on the blank. After walking 100 meters, I have to cross the road. I always cross it at the blank while dash the hand of my father. I cross the road. Only when the vehicles stop at dash light of the traffic signal Last week our class went for
उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे. लेट अस कंप्लीट दिस मच. Now children, I will read and we'll pick the words from here and we'll fill it here. Okay? My name is Mani. Now you can call it money, you can call it Mani. I think it is money. Okay? My name is Mani and I am 8 years old. Now there is a girl whose name is Mani and she is telling all these things. वो सारा कुछ इसमें बोल रही है या वो नरेट कर रही है. आई कैन से वो जो भी बातें हैं दैट मनी इज सेइंग. सो मनी सेज दैट शी फर्स्ट टेल्स अस हर नेम. अपना नाम हमें बता रही है कि शी इज मनी. हर नेम इज मनी एंड शी इज 8 years old. है ना, यहाँ पे बोल रही है माई नेम इज मनी एंड आई एम 8 years old. शी इज 8 years old. ऑलमोस्ट आपके एज के बराबर है. शी मे बी इन क्लास 2. आप ही के एज के बराबर है. एवरी डे आई गो टू स्कूल विद माई फादर. नाउ शी इज टेलिंग अस दैट एवरी डे शी गोज टू स्कूल. जैसे आप जाते हो, अभी आप नहीं जा रहे हो ड्यू टू डेफिनेटली जो रीजन है वो सबको पता है, कोविड की वजह से यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल. बट ये कॉमन डेज की बात कर रहे हैं जब आप स्कूल आते जाते थे. डेफिनेट अभी तो स्कूल खुलेंगे भी, ऐसा तो नहीं है कि परमानेंटली बंद हो जाएंगे. तो फिर आप स्कूल आओगे जाओगे. तो ये भी बता रही है कि एवरी डे आई गो टू स्कूल, मतलब ये हर दिन स्कूल जाती है. और कैसे जाती है? विद माई फादर. अपने पापा के साथ ये जाती है स्कूल. विद हर फादर. ऑन फुट. ऑन फुट मतलब पैदल पैदल जाती है, क्योंकि हो सकता है कि स्कूल जो है वो घर के बहुत पास होगा तो किसी व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती होगी, इसलिए ये वॉक करके. ऑन फुट मतलब वॉक करके. तो ये हर दिन जब स्कूल जाती है तो अपने फादर के साथ जाती है. और कैसे जाती है? कोई व्हीकल नहीं लेती है. शी गोज टू स्कूल ऑन फुट. वो पैदल ही स्कूल जाती है, वॉक करके ही वो स्कूल जाती है. आई ऑलवेज वॉक ऑन द ग्राउंड. और वो क्योंकि पैदल जाती है तो आपको अब ये बताना है कि जब हम पैदल चलते हैं तो हम कहाँ चलते हैं? क्या सड़क के बीच में चलते हैं? वेयर डू वी वॉक? व्हेन वी वॉक ऑन द रोड, वेयर शुड वी वॉक? किस तरफ हमें चलना चाहिए? आपको मैंने बताया था कि रोड पे जब हम पैदल चलते हैं तो वी शुड नॉट वॉक एट द सेंटर ऑफ द रोड. बीच बीच में नहीं चलना है. कि साइड में बना होता है रास्ता, है ना, उसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट? इसमें से है कोई वो बोले? इट इज कॉल्ड पेवमेंट. ये पेवमेंट, ठीक है, जिसको कि हम फुटपाथ भी बोल सकते हैं, साइड वॉक भी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड साइड वॉक, फुटपाथ या पेवमेंट. ठीक है, ये तीनों चीजें उनके नाम से जाना जाता है. या तो फुटपाथ बोल लो जो साइड का होता है. पेवमेंट एक्चुअली में साइड में वॉक करने का एक जगह होता है, किनारे किनारे. ठीक है, उसको पेवमेंट बोलते हैं, साइड वॉक भी बोलते हैं. तो आई गो टू स्कूल विद माई फादर ऑन फुट. आई ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट. वो पेवमेंट पे चलती है, बीच सड़क पर नहीं चलती है. पापा के साथ जाती है. और कहाँ चलती है? पेवमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर वॉकिंग 100 meters आई हैव टू क्रॉस द रोड. अभी इतना भी पास नहीं है कि बस चली और पहुंच गई स्कूल. ऑलमोस्ट 100 मीटर वो चलने के बाद, 100 मीटर अभी अब मैथ्स में देखोगे, हमने मैथ्स में मीटर्स के बारे में पढ़ा था ना कि 1000 मीटर मेक्स 1000 मीटर्स मेक्स हाउ मच? किलोमीटर. 1 किलोमीटर. तो अभी लेकिन हम उसकी बात मैथ्स नहीं पढ़ेंगे. अभी हमको ये देखना है डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 100 मीटर वॉक करने के बाद आई हैव टू क्रॉस द रोड. शी इज टेलिंग अस दैट आफ्टर वॉकिंग फॉर 100 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर, शी हैज टू क्रॉस द रोड. पहले तो सीधा सीधा चल लिए 100 मीटर और उसके बाद फिर उसे रोड क्रॉस करना होता है. आई हैव टू क्रॉस द रोड मतलब उसको रोड क्रॉस करना है. तो क्या करती है? दौड़ के क्रॉस कर लेती है? नो. आई ऑलवेज क्रॉस इट एट द ब्लैंक. अब आपको यहाँ बताना है
कि वो कैसे क्रॉस करती है। आई ऑलवेज क्रॉस इट एट, कहाँ से क्रॉस करती होगी, रोड क्रॉस जब करना है तो वो कहाँ से करती होगी, विच वर्ड वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर। रोड क्रॉसिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग। यस, रोड क्रॉस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग। सो आफ्टर वॉकिंग 100 meters आई हैव टू क्रॉस द रोड, आई ऑलवेज क्रॉस इट एट द ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ZEBRACROSSING, वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करती है। जो रोड पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनी होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जो स्ट्राइप्स बनी होती हैं रोड पर, जिसको हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं, जो ज़ीब्रा के स्ट्राइप से रिजेंबल करती है एग्जैक्टली। तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से वो रोड क्रॉस करती है। While dash the hand of my father, यहाँ पे कॉमा है, दिस इज कॉमा। While dash the hand of my father, वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड तो क्रॉस करती है, साथ में एक और प्रिकॉशन लेती है। What? While dash the hand of my father, वो अपने पापा का हाथ का क्या करती है? Is there any word here? Holding. While holding the hand of my father. Now she is saying that she crosses the road at zebra crossing holding the hand of his father. अपने पापा का हाथ पकड़ के वो रोड क्रॉस करती है। ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही करती है और साथ में प्रिकॉशन के लिए सावधानी देखते हुए अपने पापा का हाथ पकड़े हुए रहती है। ठीक है, while holding the hand of my father, वो बता रही है कि वो अपने पापा का हाथ पकड़ के ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करती है। व्हाट इट, पापा का हाथ पकड़ के ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करती है। नेक्स्ट, आई क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द व्हीकल्स स्टॉप एट डैश लाइट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल। अब अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आई क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द व्हीकल्स स्टॉप at which light of the traffic signal, मतलब रोड तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करती है, पापा का हाथ पकड़ के क्रॉस करती है, और साथ में क्या ध्यान देती है कि व्हीकल्स जो है वो रुकी हुई हैं, तभी, ऐसा नहीं कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग से कभी भी रोड क्रॉस कर लिया। नो, शी चेक्स दैट द व्हीकल्स स्टॉप एट विच लाइट, कौन सी लाइट जलती है ट्रैफिक सिग्नल में तो व्हीकल्स रुक जाते हैं। कौन से कलर की लाइट जलती है ट्रैफिक सिग्नल में, रेड, मतलब कि वो रोड क्रॉस करती है कब, जब व्हीकल्स रेड लाइट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल हो तब। ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट जल रही है, जब व्हीकल्स स्टॉप्ड रहते हैं तब वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से पापा का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करती है। गॉट इट, है ना। आई क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द व्हीकल स्टॉप, गाड़ियां रुकी हुई होती हैं, कहां पर, एट रेड लाइट, जो रेड लाइट जलती है ट्रैफिक सिग्नल की। ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट्स होती है ना, रेड, एम्बर और ग्रीन। रेड स्टॉप के लिए होता है, एम्बर वेट करने के लिए होता है, रेडी होने के लिए होता है, और ग्रीन मूव करने के लिए होता है। तो ग्रीन लाइट अगर होगी तो व्हीकल्स मूव कर रहे होंगे ना। अगर ट्रैफिक लाइट में ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब व्हीकल्स मूव कर रही हैं, तब रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब ट्रैफिक लाइट में ट्रैफिक सिग्नल में जब रेड लाइट जले तब आपको रोड क्रॉस करना है, क्योंकि तभी वो गाड़ियां रुकी ही होंगी एंड यू कैन सेफली क्रॉस द रोड। तो इन अ वे शी इज टेलिंग अस द राइट वे ऑफ क्रॉसिंग द रोड। सही तरीका क्या है रोड क्रॉस करने का, कि ट्रैफिक लाइट में, ट्रैफिक सिग्नल में जब रेड लाइट जल रही हो, जब व्हीकल स्टॉप्ड हो, तब रोड क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट वीक आवर क्लास went for a picnic. Now she is telling us that कि last week मतलब जो पिछला हफ्ता था, जो वीक बीत गया, जो पिछला वाला था, जो जस्ट
खत्म हुआ है दैट वीक, तो उस वीक में आवर क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक। उनका जो क्लास था वो पिकनिक के लिए गया था। जैसे आपकी क्लास जाती है ना, अब इस साल तो कोई भी क्लासेस नहीं, कोई भी स्कूल के बच्चे पिकनिक पर नहीं गए बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 की वजह से कोई कहीं घूमने नहीं जा पाया, है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, आपके स्कूल में होता है ना, हर साल एक क्लास पिकनिक जाती है, चिल्ड्रन एंजॉय पिकनिक, सब बच्चों को बहुत मजा आता है पिकनिक पर। आप भी गए थे, है ना। तो कोई बात नहीं, जब फिर से स्कूल खोलेंगे तो फिर पिकनिक पे जाएंगे, है ना। तब तक में स्कूल घर पे ही हमें थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा। तो वो बता रही है कि पिछले हफ्ते हमारी जो क्लास है वो पिकनिक के लिए गई। आवर क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक बाय डैश। अभी पिकनिक कैसे गए, विच व्हीकल, आपको कहीं इसमें किसी व्हीकल का नाम दिख रहा है जिससे पिकनिक जा सकते हैं? यस, बस, है ना। बस में बैठ के पिकनिक है। तो लास्ट वीक आवर क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक बाय बस। ऑल ऑफ अस वेटेड फॉर द बस इन अ लाइन। और इस साथ में बता रही है कि हम सब ने जब बस में का जब हम वेट कर रहे थे तो ऐसे भीड़ बना के नहीं खड़े थे। कैसे खड़े थे? इन अ, वो जो लाइन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जब कभी आप व्हीकल का वेट करते हो तो आप जो लाइन बनाते हो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्यू। यस, इट इज कॉल्ड क्यू। स्पेलिंग में भले ही QUEUE है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है क्यू। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? दिस इज कॉल्ड क्यू। जो LMNOP क्यू, वही वाला क्यू। इतनी सारी इसमें लेटर्स हैं क्यू के बाद UEUE, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन तो उसका क्यू ही रहेगा। स्पेलिंग लेकिन आपको ध्यान रखना है, QUEUE इज द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन इज क्यू। तो ये बच्ची बता रही है, मनी बता रही है कि जब ये लोग बस का वेट कर रहे थे तो सब कैसे वेट कर रहे थे? दे वेटेड फॉर द बस इन अ क्यू। एक लाइन में, एक प्रॉपर लाइन में वो बस का वेट कर रहे थे, इन अ क्यू। QUEUE। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए अब आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, आप जस्ट गो थ्रू इट, देन आई विल इरेज इट। चलिए आगे आप लिख लेते हैं इसको। We boarded it one by one. Only when it stopped blank. Our teacher
disturb the blank and should not dash out of the moving bus. अब इसको बच्चे देखो हम कंप्लीट कर लेते हैं. लेट मी रीड दैट फॉर यू. नाउ शी टेल्स अस दैट वी बोर्डेड इट वन बाय वन ओनली व्हेन इट स्टॉप्ड ब्लैंक. बोर्डेड मतलब चढ़ना, बस में चढ़ना. इससे पहले हमने क्या देखा था कि वो सारे जो क्लास के बच्चे थे दे वेटेड फॉर द बस इन अ क्यू. उन्होंने एक क्यू में, प्रॉपर क्यू में खड़े होके दे वेटेड फॉर द बस. और जब बस आ गई तो वो बस में चढ़े. बोर्ड होना मतलब बस में चढ़ना. तो बस में जब वो चढ़े तो कैसे चढ़े? वन बाय वन, एक एक करके. ऐसा नहीं कि एक साथ सारे भीड़ बना के चढ़ने लगे. नो, दे behaved properly and they boarded the bus one by one. एक के बाद एक एक करके वो बस में चढ़े. कब चढ़े? Only when it stopped blank. जब बस क्या चल रही थी तब. Stopped only when it stopped completely. जब बस पूरी तरह से रुकी तब ही चढ़े. ऐसा नहीं कि बस अभी धीरे धीरे हो रही है और सबने चढ़ना शुरू कर दिया एक एक करके. नो, व्हेन द बस स्टॉप्ड कंप्लीटली दे बोर्डेड द बस वन बाय वन. गॉट इट? बस पूरी तरह से रुक गई तो एक एक करके वो चढ़े. तो वी विल राइट हियर कंप्लीटली. Our teacher told us not to stand on the blank of the bus. अब बस में चढ़ने के बाद टीचर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए. क्या बोला टीचर ने? नॉर्मली टीचर क्या बोलेगी? क्या करना है? बस के कहाँ पर नहीं खड़ा होना है? Our teacher told us not to stand on the dash of the bus. बस के कहाँ पे नहीं खड़ा है? छत पे. टीचर अलाउ करेगी बस के छत पे चढ़ना? बस की छत पे आपको चढ़ना ही नहीं अलाउड होगा. तो खड़े होना तो दूर की बात है. तो कहाँ पे खड़े होने को मना किया टीचर ने? कहाँ नहीं खड़े होना चाहिए बस के? फुटबोर्ड. जो फुटबोर्ड होता है जहाँ पे पैर रख के ऊपर चढ़ते हो ना, दैट बस का फुटबोर्ड होता है. मतलब उस पे चढ़ के फिर आप बस के अंदर आते हो. तो फुटबोर्ड पर खड़ा होने के लिए टीचर ने मना किया. क्यों मना किया? क्योंकि फुटबोर्ड पे अगर आप खड़े रहोगे तो कभी सडनली ड्राइवर ने अगर ब्रेक लगाया तो देयर आर एवरी चांसेस दैट वी मे फॉल आउट ऑफ बस. बस से बाहर की तरफ हम गिर सकते हैं. इसीलिए टीचर ने कहा कि बस के फुटबोर्ड पर खड़ा नहीं होना है. ठीक है? बस के फुटबोर्ड पर खड़ा होने के लिए टीचर ने मना किया. ठीक है? नेक्स्ट, शी ऑल्सो सेड that we should not disturb the blank. अभी किसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बस में? आपस में अपने फ्रेंड्स को. पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो बातें तो करेगी. टीचर को नो. किसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? ड्राइवर. वी शुड नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. क्यों नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए? क्या होगा अगर ड्राइवर ड्राइव कर रहा है ना, वो बहुत केयरफुली ड्राइव करते हैं ड्राइवर. स्पेशली जब बस में बच्चे हों तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं ड्राइवर्स. और ऐसे में ड्राइवर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अदरवाइज भी नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए ड्राइवर को, बिकॉज उनका सारा कॉन्सेंट्रेशन होता है ड्राइव करने में, गाड़ी को चलाने में. तो उस समय उनको डिस्टर्ब करने से क्या होगा कि वो उनका ध्यान भटक जाएगा और फिर ड्राइविंग में उनसे मिस्टेक्स हो सकती है. इसीलिए कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. शी ऑल्सो सेड दैट वी शुड नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना है. एंड शुड नॉट डैश आउट ऑफ मूविंग बस. और साथ में टीचर ने क्या बताया कि वी शुड नॉट, लास्ट में हमारे क्या बताया है? लीन. लीन मतलब ऐसे बाहर की तरफ जो झांकते हैं ना बच्चे,
खिड़की में से ऐसे सिर निकाल के झांकते हैं, कभी हाथ निकालते हैं, कभी सिर निकालते हैं। दिस शुड नॉट बी डन। बस में से लीन नहीं करना, मूविंग बस से झांक कर नहीं देखना है, झुकना नहीं है, अपना कोई भी बॉडी पार्ट ऐसे बाहर की तरफ नहीं निकालना है। वी शुड नॉट लीन आउट ऑफ द मूविंग बस। चलती हुई बस में से ऐसे झांक के बाहर नहीं निकलना है। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया। आई होप ये सारा जो चीजें थी ना, ये आपकी सेफ्टी से ही रिलेटेड है, इज इट? द होल पैराग्राफ इज रिलेटेड टू द सेफ्टी, रोड सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। और मनी ने बता भी दी सारी बातें और हमने रोड सेफ्टी की बातें भी सीख ली। तो इसके साथ ही आपका ये जो पैराग्राफ है कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वी हैव ऑलरेडी डन, सो देयर इज नो नीड टू डू द क्वेश्चन आंसर्स बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी डन। एक्सरसाइजेज मैं काफ़ी सारे करवा चुकी हूँ, तो दैट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। जो एक्सरसाइज मैंने आपको कराए हैं वो जो है क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट था ये पैराग्राफ दैट आई हैव डन। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। एक नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है, आपको ये जो रोड सेफ्टी रूल्स हैं ये भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू।